ہیں ان کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو ہمارے شناخان مصطفیٰ ہیں وہ بھی جو ہے نا کچھ ایکسٹرا جو ہے نا عشق میں وہ جو ہے نا وہ شناخانی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو شریعت کے مطابق شناخانی کرنے پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی کاوش کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ان کی کاوش جو وہ کر رہے ہیں وہ کس انداز میں آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد از حمد و صلات، دعا ہے خالق کائنات ہمارے اس مشن کو جو ہمارے بھائی محترم المقام عزت مآب صاحبزادہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب مدظل العالی، امیر تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل، انہوں نے جو یہ مشن اٹھایا ہے یہ ایک ان کا ذاتی مشن نہیں ہے، یہ ایک ہر مسلمان کا مشن ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہی مشن جو ہے جمیع علماء اہل سنت کا ہے کہ محافل نعت میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ محفل نعت ہے کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا جیسے اس نے میرا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قدر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کو رفعت، بلندی، عظمت، عروج عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے پیارے محبوب، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اب دیکھیں اذان کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہے تو ساتھ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو یہ ذکر اتنا پاکیزہ ذکر ہے، یہ ذکر سرکار کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے اور عمدہ عبادت ہے، اور اس خالصتاً ذکر اور عبادت کے اندر جو خرافات آج کل پائی جا رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچے کلام پڑھے جا رہے ہیں جن میں کفریہ کلمات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہماری محفلوں میں کھڑے ہو کے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا اس کو نام دیا ہوا ہے، تو یہ کوئی تعریف نہیں ہے، یہ کفریہ کلمات بیان کرنا یا شان میں تنقیص کے کلمات کہنا۔ آج کل روافظ جو ہیں اور تفضیلی حضرات وہ لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کچے کلام لکھے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں۔ رافضیت کو ہماری اہل سنت کی محافل میں اکثریت طور پہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور اہل سنت کی اس چھتری کے نیچے کالی بیڑیں بہت چھپی ہوئی ہیں۔ جب کہ اہل سنت کے کسی مرد دلیر کی، مرد کلندر کی ضرب لگتی ہے، جیسے کہ پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ نے ضرب لگائی تو بہت ساری اس چھتری کے نیچے کالی بیڑیں چھپی ہوئی تھیں، ان کا جو ہے وہ پہچان ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں۔ پہلے وہ چھپ کے جو ہیں وہ ہماری سادہ اہل سنت کے چندے کو بھی ہضم کر رہے تھے، مال کو بھی لوٹ رہے تھے، ایمان کو بھی لوٹ رہے تھے، ہر چیز کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، تو پھر پہچان ہوئی کہ میں یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ رافضی ہیں، ان سے دور رہنا ہے۔ تو اہل سنت پہ بڑا احسان ہے کنز العلماء کا کہ انہوں نے شناخت کروائی کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، ان سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح ایک مشن میں محفل نعت کی صورت میں ہمارے عزیزم
जो है साहबजादा मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफ़ाई साहब ने भी ये बेड़ा उठाया कि महफिल के अंदर जो काली बेड़े छुपी हुई हैं और इस छतरी के नीचे छुप के राफजियत को प्रमोट करना चाह रहे हैं, स्टेज हमारे हैं, महफिलें हमारी हैं और पैसा हमारा लेके जा रहे हैं और मिशन उनका पूरा कर रहे हैं, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब लगाई है। अब जिस जिसको ज़रब लगी है वो तड़फ रहा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, ये वार गार से पार है, किसे चारा जोई का वार है। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ही ये काम सर अंजाम देते हैं और वो इन चीजों की परवाह किए बगैर कि इन पे झूठी जो है वो दरखास्तें दी जा रही हैं, FIR काटी जा रही है। वो ख्याली बेख्याली नामी जो शख्स है जिसको जो है इन्होंने वाजे किया कि वो राफजियत की मजलिसों में जाके पढ़ रहा है, तो उसने झूठी दरखास्त दी। मैं उसका जो है बमांगे दोहल जो है वो मुजम्मत करता हूं उसकी दी हुई दरखास्त का, और मैं अपने सामीन नाजरीन और अहले सुन्नत की आवाम से ये अपील करता हूं कि ऐसे राफजियत जदों से खुद भी बचें, अपनी नस्लों को बचाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बी नबी ही, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये बताओ अपनी नस्लों को कि हमारे नबी वो हैं जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े करके रख देते हैं, वो सूरज को वापस बुला लेते हैं, वो इशारा करे तो पत्थर पानी पे तैरना शुरू कर देते हैं, जिनकी बारगाह में दरख्त भी आके सलामें अर्ज करते हैं, जो जाते हो तो दरख्त और पहाड़ झुक जाते हैं और उनको सलाम करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हमारे नबी वो है जिनकी मुट्ठी में जो है काफर अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर आए तो वो आकर पूछे ई चीज दर दस्तम नहा, वो पूछे कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तुम तो आसमानों की भी खबरें देते हो। मेरे महबूब फरमाते हैं, मेरे आका वो हैं जो फरमाते हैं कि मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या ये बताएं तेरी मुट्ठी में कि मैं कौन हूं। वो कहता है अगर ये बता दें तो इससे भी बड़ी बात है। तो मेरे महबूब इशारा करते हैं कि बताओ इसे कि मैं कौन हूं, तो वो मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ के रसूल पाक की गवाही देती हैं। हमारे नबी की ये शान है और अपनी नस्लों को ये चीज सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ऐसे ही सरकार की मोहब्बत पैदा होगी। हजूर के मोजज़ात, हजूर के कमालात अपनी नस्लों को सिखाए जाएं, पास बिठा के बताया जाए और फिर सरकार की आले पाक का भी तज़किरा किया जाए। सरकार ने फरमाया दूसरी चीज हुब्बी अहली बैत ही, अपनी नस्लों को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। उनको बताओ कि अहले बैत वो हैं कि जिनका सर जो है वो नेज़े की नोक पे भी चढ़ गया। यजीदियों ने इमाम अली मकाम के सर मुबारक को तो तन से जुदा कर लिया, लेकिन कुरान का और हुसैन का इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा रिश्ता है कि कुरान को हुसैन से वो भी जुदा नहीं कर सके। तो अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम रमजान हो या गैर रमजान हो, हम हमेशा कुरान से अपना कनेक्शन और राब्ता मजबूत करें। कुरान मजीद को तर्जमा तफसीर के साथ जो कंजुल ईमान खजानुल इरफान के हाशी के साथ है उसको पढ़ा जाए। हमारे अकीदे और ईमान को जिला मिलेगी और बदअकीदगी से हम महफूज रहेंगे। अपने घरों में रखें, अपनी नस्लों को ये पढ़ाएं सिखाएं। और तीसरी चीज सरकार ने फरमाया वक़िराअतिल कुरान, जहां अपनी औलादों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इदारों में दाखिल करवा रहे हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करते। सिखाएं उनको, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, उसके साथ साथ अच्छा कुरान पढ़ने वाला भी बनाए ताकि वो अच्छा कुरान पढ़ने वाले भी हों और कुरान पाक के साथ उनका एक रिश्ता मजबूत हो और अहसन अंदाज में वो नमाज में भी तिलावत कुरान कर सकें और वैसे भी तिलावत कर सकें और तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें, अपने ईमान को अकीदे को जिला दें। मैं बहुत ममनून हूं क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवे पे मदद करनी चाहिए। तो ये हमारे भाई ने इस मिशन को उठाया है। हम मुकम्मल तौर पे, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक का मैं अमीर हूं, निगाह मुस्तफ़ा पाकिस्तान तहरीक का मैं अमीर हूं, उस पूरी तहरीक की तरफ से और आवाज सिटी 49
चैनल की तरफ से, इनकी हाफिज ज़हीर साहब की पूरी टीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज का इजहार किया, तो बड़ी खुशी का इजहार किया आप साहब ने कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके साथ इस मिशन में शामिल हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हाफिज साहब और हमारी पूरी टीम जो है वो साहबजादा मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफाई साहब के इस मिशन की, इस तहरीक की मुकम्मल तौर पे हम तईद करते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल जो है ना ऐसे ही है। मैं साहबजादा नुमान कादर मुस्तफाई साहब की खिदमत में चंद अल्फाज जो है ना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपने साहबजादा साहब जो आपने बेड़ा उठाया ना इस दौर में, पुरफितन दौर के अंदर, जो सनाखाने मुस्तफ़ा ने जो मिंबरे रसूल को, स्टेज को जो है ना एक ऐसे माहौल में चेंज कर दिया है कि ना तो वो पता चलता है कि वो जो है मिंबरे रसूल है, ना वो पता चलता है उलमा का स्टेज है, वो पता नहीं, समझ नहीं आती। वहाँ पे वो ऐसे ऐसे जो है ना अल्फाज में वो सनाखानी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो समझ से बाहर हैं। आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है, मैं बिल्कुल आपको खराज अकीदत पेश करता हूं और आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने एक ऐसे दौर के अंदर एक ऐसे उन लोगों से आप उन लोगों से उलझ बैठे हैं जो एक अपनी चेयर बना के बैठे हुए हैं, जो उलझ नहीं बैठे, बल्कि आपने अहले सुन्नत के जो सही मानों में तर्जमानी है और हमारी महफिल का जो असल किबला है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। उलझे वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, राह से हटे हुए हैं और राफजियत ज़दा है, वो उलझ रहे हैं हमारे साथ। हमने क्या उलझना है, हम तो सीधी राह दिखा रहे हैं, वही राह जो सिराते मुस्तकीम वाली राह है, ये वही बेआन ही राह है जो दाता साहब की राह है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की राह है, जो मुजद्दिद अल-फसानी की राह है, जो आला हजरत कुश्ते इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की राह है। जी बिल्कुल जो है साहबजादा साहब बिल्कुल जो लाखों रुपए वसूल करके जो है दीन की ना बात करते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह साहबजादा साहब बेलौस कर रहे हैं और पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी। साहबजादा साहब को जो है ना मेरी फोन पे उनसे गुफ्तगू हुई है, आज आपने जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं बकायदा जो है उनकी जो एक्टिविटी है मैं उनको बड़ी खुश दिली से जी किबला साहबजादा साहब अरसा दराज से मेरी इनसे मुलाकात है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कर्म नवाह हैं, मेहरबान हैं, मुशफिक हैं। साहबजादा साहब इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम, मैं दिलो जान से आपके साथ हूं, आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जो आप अच्छा और इंशाल्लाह हर महाज पे हम जो है वो जुबान की कुव्वत के साथ, अल्लाह ने हमें ये कुव्वत दी है तो हम इस कुव्वत के साथ इंशाल्लाह जिहाद करेंगे और हर महाज पे इंशाल्लाह दुश्मनाने दीन का खात्मा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।